नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। आइए पहले देख लेते हैं आज के सभी मुख्य समाचार। फिलहाल असम में लॉकडाउन की संभावना नहीं, कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य है पूरा तैयार, बोले डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। आज कछार जिले से कोरोना के 69 नए मामले सामने आए, वहीं 8 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना से बचने की तरकीब जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए डॉक्टर शशांक जोशी से बात। इस वक्त मन की बात नहीं बल्कि जान की बात करनी चाहिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपहास करते हुए किए ट्वीट। अब आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। राज्य में फिलहाल लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, राज्य कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरा तैयार है। राज्य में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन तथा अस्पतालों में सीट उपलब्ध है, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का। आइए सुनते हैं। কৰাৰ মই প্ৰয়োজনীয়তা মই ভবা নাই। মই ভাবো লকডাউন আমি কিয় কৰো, যেতিয়া হস্পিটালত অক্সিজেন নাথাকে, ইনজেকশন নাথাকে, ঔষধ নাথাকে, কিট নাথাকে, তেতিয়া লকডাউন কৰি আমি সাময়িক সকাহ লওঁ। দিল্লীত আজি লকডাউন হৈছে কাৰণ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে মোৰ অক্সিজেন নাই, কিন্তু অসমত ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আজিৰ দিনটোত সকলো আছে। গতিকে আমি লকডাউনৰ দৰে কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ সন্মুখত আহি পৰা নাই। আৰু মই ভাবো যে যি ধৰণে আমি ইনজেকশন যোগাৰ হৈ গ'ল, নতুন নতুন ডিমাপুৰতো এটা অক্সিজেন প্লান্ট আছিলে, গম পোৱা নাছিলো, অহাকালি তেওঁলোকৰ লগতো আমাৰ MOU হ'ব। যি ধৰণে আমাৰ কথা বতৰাবিলাক আমি সম্ভেদ পাই আছো বা আমাৰ যোগাযোগ হৈ আছে, মই ভাবো যে অসমত লকডাউনৰ পৰিৱেশ অহাৰ সম্ভাৱনা অত্যন্ত কম। দুটা নিৰ্দেশ দিছো যে 100 য'ত য'ত কোভিড ৰোগী আছে তাত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব, আৰু অলপ যদি ৰোগীৰ সংখ্যা 100তকৈ বাঢ়িছে তেতিয়াহ'লে উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চতৰ মাধ্যমিক কলেজসমূহ 50% এটেণ্ডেন্স দি চলিব। 2 তাৰিখলৈকে এইখিনি থাকিব। 2ৰ পিছত আমি গোটেই বিষয়টো সমীক্ষা কৰি আৰু যদি কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, পূৰ্ণ বন্ধ বা সকলো বন্ধ, শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যদি কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, আমি 2 তাৰিখৰ পিছত আমি ল'ম। আমি এইটোকে মই ক'ব পাৰোঁ যে আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ যে আমি ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন বিচাৰি গোটেই পৃথিৱীত ঘূৰি আছিলোঁ। যেনেকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এটা গানত গৈছিল যে গুৰু বিচাৰি গোটেই পৃথিৱী ঘূৰিলোঁ, কিন্তু পৰম গুৰু আমাৰ অসমতে। ঠিক তেনেকৈ ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন যে অসমতে বনাই আছিল আমি গম পোৱা নাছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আমি পলাশবাৰীত ছান ফাৰ্মাত গৈ গম পালোঁ যে প্ৰতি সপ্তাহত 80,000 ৰেমডিচিভিৰ অসমতে উৎপন্ন হয়। এতিয়া আৰু অসমত আমি ৰেমডিচিভিৰৰ অভাৱ আমি বোধহয় অনুভৱ নকৰিম। অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুদূৰ আগুৱাই গৈছোঁ। ভূটানতো এটা নতুন অক্সিজেন প্লান্ট বনি আছিলে, তাৰো অক্সিজেন পাবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আজি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। আৰু অসমত যিমানখিনি আমি অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ বাবে বহু হাজাৰ ৰোগী নহালৈকে আমাৰ অসুবিধা নহয় বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। ICUৰ ব্যৱস্থা যথেষ্ট বঢ়োৱা হৈছে। মই ভাবোঁ যে আমি যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে সৈতে কোভিড আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম। লকডাউন কৰাৰ মই প্ৰয়োজনীয়তা মই ভবা নাই। মই ভাবোঁ লকডাউন আমি কিয় কৰোঁ, যেতিয়া হস্পিটালত অক্সিজেন নাথাকে, ইনজেকশন নাথাকে, ঔষধ নাথাকে, কিট নাথাকে, তেতিয়া आज कछार जिले से कोरोना के 69 नए मामले सामने आया है। वहीं सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कुल 37 मरीज चिकित्साधीन हैं, जिनमें से 25 मरीजों को वार्ड में रखा गया है, तो ही 12 मरीजों को ICU में रखा गया है। जो 12 मरीज ICU में हैं
उनमें से 7 को वेंटिलेटर में रखा गया है। वहीं 5 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। आज देश के विभिन्न इलाकों से हवाई सफर कर सिलचर पहुंचे कुल 479 यात्री, जिनमें से 366 यात्रियों को कोविड टेस्ट किया गया और उनमें से 6 लोगों में कोरोना पाया गया। देश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए एवं लोगों को जागरूक करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डॉक्टर शशांक जोशी से बातचीत की। आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं डॉक्टर शशांक जोशी के बीच हुई कोरोना को लेकर बातचीत को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जोशी को कोरोना के इलाज और उससे जुड़ी रिसर्च का बहुत ही जमीनी अनुभव है। वह इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के डीन भी रह चुके हैं। आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या क्या सावधानी जरूरी है। धन्यवाद सर। ये दूसरी बाढ़ आई है, ये तेजी से आई है। तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफी कम है। इसमें 2-3 फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, पर उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पाल कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है। इसमें वैद्यकीय सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर शशांक, मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंका है। कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं। और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करें तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है। हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं, इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं। बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो मॉडरेट कोविड होता है, मध्यम कोविड होता है या तीव्र कोविड होता है, तो वैद्यकीय अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करना बहुत जरूरी है। सही और सस्ती दवाई अवेलेबल है जिसमें स्टीरॉयड जो है ये जान बचा सकती है। जो इनहेलर्स दे सकते हैं हम, टैबलेट दे सकते हैं हम, और उसके साथ ही प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो देना पड़ता है। और इसके लिए छोटे छोटे इलाज है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई एक्सपेरिमेंटल दवाई है जिसका नाम है रेमडेसिविर।
ये दवाई से एक चीज जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और क्लिनिकल रिकवरी में थोड़ी सी उसकी एड होती है। ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये 5 ही दिन लेनी पड़ती है। तो ये लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे, ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए। ये दवाई की थोड़ा काम है, जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना। हम प्राणायाम करेंगे, हमारे शरीर के जो लंग्स है उसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जो इंजेक्शन आती है जिसको हम हिपैरिन बोलते हैं, ये छोटी छोटी दवाइयां देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वैद्य के सलाह से लेना बहुत जरूरी है और ये जो महंगी महंगी दवाई है उसके पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। अपने पास अच्छे इलाज चालू है, प्राणवायु ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर की भी सुविधा है, सब कुछ है सर। और कभी कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग्य लोगों में ही देनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत भ्रम पैदा हुआ है और इसलिए ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सर कि अपने पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा रिकवरी रेट है। आप यदि कंपेयर करेंगे यूरोप के लिए, अमेरिका, वहीं से भी हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से मरीज ठीक हो रहे हैं सर। डॉक्टर शशांक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलहाल मन की बात नहीं करना चाहिए। मन की बात की जगह उनको जान की बात करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मन की बात के जरिए संबोधित किए। उसके तुरंत बाद ही सर्वभारतीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का उपहास करते हुए एक ट्वीट किए और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यह समय मन की बात की नहीं है बल्कि जान की बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि जबकि पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, लोग मर रहे हैं, उस वक्त मन की बात क्यों किया जा रहा है। कछार जिले के काटीगोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ते हुए कोरोना मामले पर शिकंजा कसने के लिए आज काटीगोड़ा सर्कल कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई। कोविड-19 पर शिकंजा कसने के लिए आज काटीगोड़ा के सर्कल कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। सर्कल मजिस्ट्रेट प्राणजीत कुमार देव की पहल पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में यह बैठक किया गया। আজকে আমাদের কোভিড পরিস্থিতির উপর একটা সার্কেল লেভেল একটা মিটিং অনুষ্ঠিত করা হয় আমাদের সার্কেল অফিসে অ্যালং উইথ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, পঞ্চায়েত অ্যান্ড হেলথ ডিপার্টমেন্ট। সো এই কদিনের ভিতরে দেখা গিয়েছে যে আমাদের স্পেশালি কাটিগোড়া কালাইন এরিয়াতে পজিটিভ কেসেসের সংখ্যা খুব বেড়েছে। সেই জন্যে আমরা একটা এই রেটটা কমাবার জন্য আমরা একটা প্রিকশনারি মেজার্সের উপরে প্ল্যান বানানোর জন্য একটা মিটিং অনুষ্ঠিত করা হয়। সো এসওপি অ্যাকর্ডিংলি দেখা গেছে যে আমাদের এরিয়াতে বহুত লোকেও এসওপি এখনও তারা সিরিয়াসলি আইদার নিচ্ছে না, আর সেটার কারণে আমাদের এখানে পরিস্থিতিটা একটু ডেটোরিয়েট হয়ে চলেছে। সো আজকের মিটিংয়ের আমরা ডিসিশন মতে উই হ্যাভ অল ডিসাইডেড কি যদি কোনো লেসি, কোনো বাজার কমিটি বা কোনো অন্য রেসপন্সিবল অথরিটি যারা এসওপির এগেনস্টে বা যারা এসওপি অ্যাকর্ডিংলি যারা রুল পালন করছে না, ওদের এগেনস্টে আমরা আরও একটু স্ট্রিক্ট হব। ফাইনের ব্যবস্থা তো আছেই, আর যদি প্রয়োজন হয় আমরা কেসও নেব, এফআইআর দেওয়া হবে। আর স্পেশালি আমরা জানাচ্ছি যে অল ট্রাভেল যারা অথরিটিস, ট্রাভেলিং ট্রান্সপোর্ট অথরিটিস আছে, যে এরিয়া ওয়াইজ আপনার অটো অ্যাসোসিয়েশন বা আপনার অন্য ভেহিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, তাদেরকেও আমার অনুরোধ থাকবো যে আপনারা যেরকম এসওপি মতে ভেহিক্যাল ড্রাইভার প্লাস দুজনে অনলি প্যাসেঞ্জার নিতে পারবেন সেটা আপনারা মানে চলেন। আর যদি দেখা যায় যে আপনারা এই ধরনের রুল রেগুলেশন না মানেন, দেন আমরাও অ্যাজ পার এসওপি আমরাও অ্যাক্ট করতে বাধ্য হব। अब हमारे बीच नहीं रही 127 वर्षीय सामुद्री ग्वाला। कछार जिला अंतर्गत सोनाई विधानसभा क्षेत्र के बारिक नगर के रहने वाली थी सामुद्री ग्वाला। कछार जिला अंतर्गत बारिक नगर के निवासी वरिष्ठ नागरिक सामुद्री ग्वाला, जिनका उम्र 127 वर्ष हो चुका था, वह रविवार दोपहर को अंतिम सांस ली। उनके निधन के खबर से ही हजारों संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे तथा उनके अंतिम संस्कार पर भी हिस्सा लिए। वह अपने पीछे छोड़ गई हैं जगदीश ग्वाला, दूधनाथ ग्वाला, रामनाथ ग्वाला नामक 3 पुत्र सहित कई पोते पोतियों को। उनके मौत से समूचे इलाके में शोक की छाया व्याप्त हुआ है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा ही कुछ आरोप लगाए आज सिलचर लिंक रोड के 14 नंबर लेन की जनसाधारणों ने। आइए देखते हैं।
তো আমরা গল্লি মানে 2017 ইংরেজিতে রেজলিউশন নেওয়া হয়েছিল যে গল্লির 490 মিটার পুরা ব্লক বসানো হইতো। তো 490 মিটার ব্লক বসানো ওই যে মানে হওয়ার কথা পরে আমরা সবে মিলিয়া পয়সা উঠানি হয়েছে 20,000 টাকা করে প্রত্যেক ঘর থেকে। তো 46টা ঘর আছে, 9,20,000 টাকা উঠছে। তারপরে আমরা একটা মানে ইঞ্জিনিয়ারের দেখাইয়া মানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেখাইয়া আমরা একটা হিসাব লইছি বারবেলি যাতে এখানে কত টাকা মানে খরচ হইতে পারে। তখন তাই উঠিয়া কইছিল মানে অ্যাপ্রক্সিমেট 12 লাখ টাকা। তো 12 লাখ টাকা যখন মানে ইয়া করছেন তখন আমরা বললাম যে 9,20,000 টাকা উঠছে আর বাকি 3 লাখ টাকা কেমনে ম্যানেজ করা। তখন আমরা ওয়ার্ড কমিশনারে মানে আশ্বাস দিলা, মানে রতন সরকার অসিত আশ্বাস দিলা যে বাকি 3 লাখ টাকা আমি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আনিয়া ম্যানেজ করাইয়া দিব। আচ্ছা ভালো কথা, কাজ আরম্ভ হয়েছে, সবাই পয়সা দিছে, পয়সা উঠানি হয়েছে। কিন্তু এই কয়দিন থেকে দেখা যাইতেছে বিগত 2 বছর থেকে মাঝে মাঝে খালি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে খালি পয়সা আয় আর আধা কাম হয় আধা ইয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের যে গল্লির মানে প্রেসিডেন্ট আছে, প্রেসিডেন্টের কাছে যদি কিছু জানতে মানে চাই কোনো উত্তর নাই। তারপরে গেলাম মানে আপনার উন্নয়ন সংস্থার কাছে গেলেও কোনো সঠিক উত্তর পাই না। হ্যাঁ, তাই বাধ্য হইয়া আজকে আপনার এই কারণে দেখাইয়া আনলাম যে মানে আপনারা মানে মিডিয়া শব্দে দেখাই যে এরকম অরাজকতা চলে। হ্যাঁ, আমাদের গল্লির এখন এমন অবস্থা হয়েছে, গল্লিতে আপনার আটিয়া তো আইসে নিশ্চয় আপনারা ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত কোনো ড্রেনের ইয়ে নাই, সব জঙ্গলে ভর্তি। আজকে 1.5 বছর থেকে জলের মানে অভাব। হ্যাঁ, এবং মানে জল তো আই না, কিন্তু এটা যে মানে ইয়ে করতাম অভিযোগ যে ইয়ে করতাম এটা কার কাছে করতাম কোনো উত্তর নেই। হ্যাঁ, सिलचर मेडिकल कॉलेज पॉइंट से लेकर असम विश्वविद्यालय तक सड़क की नवीनीकरण किया जा रहा है। लोगों की कहना है कि इस बार जो सड़क की नवीनीकरण किया जा रहा है वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। असम विश्वविद्यालय पार कर हैलाकांदी के लिए जाती है। फिलहाल इस सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है। सिलचर मेडिकल कॉलेज से असम विश्वविद्यालय पार कर औरंगमारा बाज़ार तक इस सड़क पर काम चलेगा। फिलहाल में फकीर टीला से इस सड़क पर काम चल रहा है और यह कार्य फकीर टीला होकर बारीक नगर, सिलकुड़ी कैंप, दुर्गा कोना, असम विश्वविद्यालय पार कर औरंगमारा बाज़ार तक संपन्न होगा। बहुत ही मोटी चादर के साथ इस सड़क का निर्माण हो रहा है और बेहतरीन कार्य हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार जो सड़क का निर्माण हो रहा है यह जल्द ही खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जो तत्व मिलाने हैं वो सारे मिलाया जा रहा है। कुल मिलाकर बेहतरीन कार्य हो रहा है, क्योंकि इस सड़क पर असम विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षकगण तथा हैलाकांदी से सिलचर आने वाले लोग आवागमन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। फिलहाल काम चल रहा है। आज उधारबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उधारबंद शाखा ने लोगों में मास्क वितरण किए तथा कोरोना से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए भी दिखे। आज इस अवसर पर राज्य युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष जयंत चक्रवर्ती, कछार जिला के अध्यक्ष अमितेश चक्रवर्ती, भारतीय जनता पार्टी के कछार जिला युवा मोर्चा के सचिव पुलक देव, रंगपुर मंडल के अध्यक्ष विश्वजीत दास सहित सुशांत राय, शुभम राय, सौमिक पाल एवं सोनाली चक्रवर्ती उपस्थित थी। आइए फिर एक बार देख लेते हैं आज के मुख्य समाचार। फिलहाल असम में लॉकडाउन की संभावना नहीं, कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य है पूरा तैयार, बोले डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। आज कछार जिले से कोरोना के 69 नए मामले सामने आए, वहीं 8 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज।
कोरोना से बचने की तरकीब जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए डॉक्टर शशांक जोशी से बात। इस वक्त मन की बात नहीं बल्कि जान की बात करनी चाहिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपहास करते हुए किए ट्वीट। नॉर्थ ईस्ट आवर्स टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।